بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا صدق الله العظيم. قرآن کریم میں سورۃ توبہ اسی آیت میں رب تعالی نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے صحابہ کرام کے توبے کو بیان فرمایا۔ غزوہ تبوک جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ لڑائی ہے جس طرف جانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور تیاری کا حکم فرمایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے فلاں علاقے اور فلاں جگہ جانا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لڑائی کے لیے بھی نکلتے، جس غزوے میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریہ فرماتے تھے، یعنی وضاحت کے ساتھ صراحتاً جگہ کا نام نہیں لیتے تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو، لیکن یہاں پر فرما دیا کہ بھائی تبوک جانا ہے، کیونکہ سفر بھی دور کا تھا، موسم بھی گرمی کا تھا، اور مدینے کے جو سالانہ فصل ہے کھجور وہ بالکل تیاری کا موسم تھا۔ اب صرف جنگ نہیں ہے، صرف ایک غزوے کے لیے نہیں جانا بلکہ ایک امتحان سر پہ آ گیا۔ اس لیے تو منافقین یہ کہنا شروع کر گئے لا تنفروا فی الحر، بھائی گرمی ہے ہم سے تو نہیں جایا جاتا۔ کچھ کہنے لگے ان بیوتنا لعورا، بھائی ساڈے دے پیچھے گھر کوئی نہیں، گھر لگے رہ جان کے پھر کی کریں۔ مقصد منافقین کے بہانہ سازی کا یہ تھا کہ ہم اس لڑائی سے بچ سکے، اس میں نہ جا سکے، اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا عذر بیان کر کے حضور سے اجازت لی۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم۔ اب پہلے حضور اجازت دیتے گئے، ایک آتا وہ اپنی اجازت مانگتا، دوسرا آتا وہ اجازت مانگتا، حضور اجازت دیتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے۔ مخلص صحابہ کرام، بدری صحابہ کرام میں سے 3 حضرات ایسے جن پر نفاق کا شبہ بھی کوئی نہیں، کوئی عذر بھی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اجازت بھی نہیں لی، رہ گئے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے، جن میں ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے صحابی ہے مرارۃ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، یہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں۔ بخاری میں، حدیث کے تمام کتابوں میں تقریباً ان کی آپ بیتی، ان کے اوپر جو گزرا، ان کے جو حالات آئے وہ خود بتاتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، کوئی اور نہیں بیان کر رہا۔ باقی جو 2 صحابہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، جیسے حکم ان کے لیے آتے گئے وہ حکم ان پر بھی لاگو ہوتے گئے، جیسے ان کے لیے
दरवाजे बंद हो गए, उनके लिए भी दरवाजे बंद हो गए। फिर खुलासा ये कि चलते चलते 50 दिन हो गए। 50वें दिन जाकर अल्लाह ने फिर इनके तौबा की कबूलियत के लिए कुरान से आसमान से जिब्राइल को उतारा और खुशखबरी आ गई कि अल्लाह ने इन तीनों के तौबा को कबूल फरमा लिया। काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, फरमाते हैं कि तबूक से पहले किसी लड़ाई में भी इतना कवि और मालदार नहीं था जितना तबूक के वक्त था। मेरे पास अपनी जाती 2 ऊँटनियां थी, इससे पहले कभी मेरे पास 2 ऊँटनियां नहीं रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत थी जिस तरफ लड़ने के लिए जाना होता उसका इजहार नहीं फरमाते थे, लेकिन इस लड़ाई में हुजूर ने खुलकर इजहार फरमाया ताकि लोग खूब तैयारी करें। चुनांचे बहुत बड़ी जुमात सहाबे किराम की हुजूर की खिदमत में आ गई और उन्होंने अपने अपने नाम लिखवा दिए कि भाई हम तैयार है जाने के लिए। मैं भी सामान्य सफर की तैयारी का सुबह से इरादा करता, शाम हो जाती, तैयारी मेरी ना होती। दिल में ख्याल करता कि मुझे वुसअत भी हासिल है, इरादा भी पुख्ता है, फौरन निकल जाऊंगा तो हुजूर के साथ मिल जाऊंगा। लेकिन तैयारी मेरी ना हो सकी। 1-2 रोज गुजर गए, मैं यही कह रहा था कि चलो तैयारी करके हुजूर से जा मिलूंगा। इस तरह आज कल पर काम चलता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तबूक में और मैं नहीं जा सका। अब जाने का मौका ही नहीं रह गया। मदीने में देखता इधर उधर सिर्फ वही लोग मिलते जिनके ऊपर निफाक का दाग लगा होता था या वो माजूर होते थे। हुजूर भी तबूक पहुंचकर पूछा, काब नजर नहीं आ रहे। एक साहब ने कहा, रसूलुल्लाह, उनको अपने मालो जमाल की अक्ल ने रोका। हजरत मुआज ने फरमाया, गलत कहा, हम जहां तक समझते हैं भले आदमी हैं। हुजूर ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार फरमाई। हजरत काब के तज़किरे पर हुजूर कुछ ना बोले। अब जिस मिशन के लिए जाना था मिशन पूरा हो गया, वापसी की खबर पहुंच गई। अब बाकियों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, मुझे अपनी पड़ी है कि पता नहीं हुजूर पूछेंगे तो क्या उज़र करूंगा, क्या जवाब दूंगा। दिल में मुख्तलिफ किस्म के उज़र आते रहे, लेकिन ये सोचकर कि वक्ती उज़र बयान करके झूठ बोलकर हुजूर के गुस्से से तो बच जाऊंगा, और दिल यही समझाता रहा कि चल उज़र बयान कर दे, झूठा ही सही, बाद में हुजूर से माफी मांग लेंगे, हुजूर से दरखास्त कर लेंगे माफी। सिर्फ अकेले नहीं बल्कि मेरे जितने यार दोस्त रिश्तेदार थे उनसे भी मैं मशवरा करता रहा। लेकिन जब मालूम हो गया कि हुजूर तशरीफ ले आए तो मेरे दिल ने फैसला किया कि सच के बगैर कोई निजात नहीं है, और मैंने सच बोलकर सच बयान करने की ठान ली। हुजूर की आदत शरीफा थी, जब सफर से वापस आते तो पहले मस्जिद तशरीफ ले जाते, 2 रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़ते, वहां थोड़ी देर तशरीफ रखते, मुलाकातें होती। हुजूर ने इस मौके पर भी ऐसे ही फरमाया। मुनाफिक लोग आए, झूठे झूठे उज़्र बयान करते रहे, कस्में खाते रहे, हुजूर उनके हाल को कबूल फरमाते रहे और बातिल को अल्लाह के सुपुर्द करते रहे। इतने में मैं भी हाजिर हुआ, सलाम किया। हुजूर ने नाराजगी के अंदाज में तबस्सुम फरमाया, एराज फरमाया। मैंने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, आपने एराज फरमा लिया, खुदा की कसम न तो मैं मुनाफिक हूं और न मुझे अपने ईमान में कुछ तरद्दुद है। इरशाद फरमाया, हाँ
میں قریب ہو کر بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تیرے پاس اونٹنیاں نہیں تھی؟ میں نے عرض کیا اگر میں دنیا کے کسی بڑے آدمی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس غصے سے عذر کر کے نکل جاتا، خلاصی پا لیتا. مجھے اللہ نے بات کرنے کا بڑا طریقہ عطا فرمایا. لیکن آپ کے بارے مجھے پتا ہے اگر آج جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں گا تو قریب اللہ آپ سے میرا جھوٹ سامنے کر دیں گے، آپ پھر ناراض ہو جائیں گے. اور اگر آج آپ سے صاف صاف عرض کر دوں گا آپ غصے ہو جائیں گے، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی ذات آپ کے عتاب کو دور کر دے گی. اس لیے سچ ہی بولتا ہوں واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا. اور جیسی وسعت اس دور میں مجھے حاصل رہی، جتنا فارغ میں اس وقت تھا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس سے نے سچ کہا ہے تو پھر اچھا جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ خود ہی فرما دے. میں وہاں سے اٹھا، میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے کہا اچھا نہیں کیا تو نے، پہلے ہی گناہ تھے نا، اس سے پہلے تجھ سے گناہ ہوا ہی نہیں تھا. عذر کر لیتا حضور تیرے لیے درخواست کر لیتے استغفار کی، تیرے توبہ قبول ہو جاتی. میں نے ان سے پوچھا کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں 2 شخص اور بھی ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا اور ان کو بھی یہی جواب ملا کہ تمہارا معاملہ کس کے سپرد؟ اللہ کے. ایک ہلال بن امیہ ہے اور دوسرا مرارۃ بن ربیعہ ہے. میں نے دیکھا دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، دونوں بدری صحابی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہے. میں نے کہا چلو کوئی ٹینشن ہے کم ہوگی، کیونکہ بندہ کلّا ٹینشن جو ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت فرما دی، کوئی شخص ان سے بات نہ کرے. اور یہ خیرے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو. اصلاح کی قابلیت جس میں نہ ہو اس کو تنبیہ کون کرتا ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے منع کرنے پر صحابہ کرام نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا، ہم سے اجتناب کرنے لگے. گویا کہ دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنے وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی. سارے لوگ ایسے لگتے رہے جیسے اپنے ہے ہی نہیں، پرائے ہیں، اور در و دیوار اوپرے ہو گئے تھے. مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ اگر اس حال میں دنیا سے چلا گیا تو حضور جنازہ بھی نہیں پڑھائے. فکر دے. اور خدا نخواستہ اگر حضور اس زمانے میں دنیا سے چلے گئے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہوں گا، کوئی میرے ساتھ پھر بولے گا نہیں. نہ حضور کے جانے کے بعد اگر یہی حالت رہی کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا. حضور کے ارشاد کے خلاف صحابہ کرام تو کر ہی نہیں سکتے. غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے. میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے. میں ان میں کبھی تھا، چلتا پھرتا بازار میں جاتا، نماز کے لیے آتا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. ہاں حضور کے مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا، بہت غور سے دیکھتا کہ حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلتے یا نہیں. نماز کے بعد حضور کے قریب ہی کھڑے ہو کر میں اپنی نماز پوری کرتا، آنکھ چڑھا کر دیکھتا حضور مجھے دیکھتے بھی یا نہیں. جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہو جاتا تو حضور دوسری طرف منہ پھیر لیتے، میرے سے اعراض کر. غرض یہی حالت زندگی گزرتی رہی. مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت بھاری ہو گیا تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پر چڑھا. یہ میرے رشتے میں چچا زاد تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت زیادہ تھے. میں نے اپنے دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب. یہ صحابہ کرام کی خصوصیت. حضور نے فرما دیا وہ ہر پہ آخر ہے. کوئی اور کام کہے، کسی اور بات کا کہے، درمیان میں رشتے آ گئے، درمیان میں
खानदान के मामलात आ गए, नहीं, हुजूर ने फरमाया जो हुजूर का फरमान है उसी पर बस है। इसलिए तो मुशरिकीन मक्का कहने लगे थे, हुजूर के खिलाफ जब प्रोपेगेंडा करते तो यही बात करते कि ये औलाद को वालिदैन से जुदा कर रहा है, बीवी को बच्चों से बीवी को खावंद से जुदा किया जा रहा है, खावंद को बीवी से जुदा किया जा रहा है। अजीब तालीम है। वो तालीम अजीब नहीं थी, वो सहाबा की हुजूर के साथ मोहब्बत थी। सब रिश्ते हुजूर पर कुर्बान, सब ताल्लुकात हुजूर पर कुर्बान, सब कुछ हुजूर के कहने पर कुर्बान। मशहूर है ना साहबे किराम को जब शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, शराब से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत पीते थे। इतनी महबूब तरीन चीज उनकी जो जिंदगी में रही वो शराब, लेकिन जब हुजूर ने फरमा दिया कि शराब हराम, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लोगों ने घरों से बड़े मटके उठाकर बाहर लाकर बड़े बाजार में मदीने के गलियों में ऐसे तोड़े कि मदीना की गलियों में शराब ऐसे बहते नजर आ रही जैसे बारिश हुई और पानी निकल रहा। ये सहाबा की मोहब्बत। फरमाते हैं मेरे चचेजाद भाई ने मुझे सलाम का जवाब, मैंने उनको कसम देकर पूछा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं? उन्होंने इस बात का भी जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा कसम दी, पूछा, वो फिर भी चुप रहे। मैंने तीसरी बार कसम देकर पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल जाने। हमें नहीं पता। हुजूर ने बात करने से मना कर दिया तो हम रुक गए। फिर ये कलमा सुनकर मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े, वहां से लौट आया। इसी दौरान मैं एक मरतबा मदीने के बाजार में जा रहा था। एक किब्ती जो नसरानी था, शाम से मदीना आया था, अपना गल्ला फरोख्त कर रहा था। ये कहते हुए सुना, कोई काब बिन मालिक का पता बता दो, कोई काब बिन मालिक की खबर दो। लोगों ने उसको मेरी तरफ इशारा करके बताया कि वो है। कोई नाम भी नहीं ले रहा था। वो गस्सान के काफिर बादशाह का खत मुझे ला कर दिया उसने। उसमें लिखा हुआ था, हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है, तुम्हें अल्लाह जिल्लत की जगह न रखे, अल्लाह तुम्हें जाया न करे, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दुनिया का कायदा होता है किसी बड़े की तरफ से अगर छोटों को तंबीह होती है तो उनको बहकाने वाले और ज्यादा खोने की कोशिश किया करते हैं। खैर खा बनकर इस किस्म के अल्फाज बयान किया करते कि चलो यार तेरे नाल जुल्म हो गया, तुम अच्छे आदमी हो, तुम बड़े काम के बंदे हो, हमारे पास आ जाओ। ये नहीं कहा कि ईमान छोड़ो, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे ओहदे के मुताबिक हैसियत देंगे। कामर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे, मैंने खत पढ़ा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी हालत यहाँ तक पहुंच गई कि काफिर भी मुझसे तबाह करने लगे और मुझे इस्लाम से हटाने की तदबीरें करने लगे। ये तो एक और मुसीबत आ गई मेरे लिए। उस खत को ले जाकर मैंने उस तनूर में फेंक दिया और हुजूर से जाकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपके एराज की वजह से मेरी हालत ये हो गई कि काफिर मुझसे तबाह करने लगे। इस हालत में 40 दिन हम पर गुजर गए। अब एक और इम्तिहान, हुजूर का मेरे पास पैगाम आया कि अपनी बीवी को छोड़ दो। मैंने पूछा तलाक दे दूं? कहते नहीं, अलहदगी इख्तियार करो। मेरे दोनों साथियों के पास भी वही कागज पहुंचा। मैंने अपनी बीवी से कह दिया अपने मैके चली जा, जब तक अल्लाह का फैसला ना आए वहीं पर रहना। हिलाल इब्न उमैया की बीवी हुजूर की खिदमत में पहुंची। अरे क्या हिलाल बूढ़े शख्स है, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है, अगर आप इजाजत दें, आपको बीमारी न हो तो मैं काम काज कर दिया करूं। हुजूर ने फरमाया ठीक है, इजाजत दी। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी तरफ वो ना है। उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो उस वाक़े को और उस दिन से लेकर आज तक रोते ही जा रहे हैं, उनको किसी और चीज का ख्याल तक नहीं है। कब कहते हैं मुझे भी कहा गया कि तुम भी अपनी बीवी हुजूर की खिदमत में भेज दो, हुजूर इजाजत दे देंगे, तुम्हारी भी खिदमत होती रहेगी। मैंने कहा वो बूढ़े आदमी में जवान आदमी हो, पता नहीं हुजूर क्या जवाब देते। यहाँ 10 दिन और गुजर गए, 40 दिन वो और 10 दिन ये हमसे बातचीत मेल जोल
लोगों को छोड़ी वो 50 दिन हो गए। 50वें दिन सुबह की नमाज अपने घर की छत पर पढ़कर निहायत गमगीन बैठा हुआ था। जमीन मुझ पर बिल्कुल तंग थी, जिंदगी दोमर हो रही थी। सला पहाड़ की चोटी पर एक जोर से चिल्लाने वाले ने आवाज दी, काब अबशिर, काब तुमको खुशखबरी हो। मैं इतना ही सुनकर सजदे में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा। समझा कि तंगी दूर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के नमाज के बाद हमारी माफी का ऐलान फरमा दिया था। एक शख्स ने पहाड़ पर चढ़कर जोर से आवाज दी, सबसे पहले उसकी आवाज मुझे पहुंची। उसके बाद एक साहब घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आए। जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो निकाल कर मैंने बतौर खुशी के उनको दिए। खुदा की कसम उन दो कपड़ों के अलावा और मैं उस वक्त किस चीज का मालिक नहीं था। उसके बाद मैंने दो कपड़े मांगे हुए पहने, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। इस तरह मेरे दोनों साथियों के पास भी खुशखबरी लेकर लोग पहुंच गए। जब मस्जिद नबी में हाजिर हुआ तो लोगों जो हुजूर की खिदमत में हाजिर थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए दौड़े। सबसे पहले अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़कर मुझे मुबारकबाद दी, मुसाफा किया, जो हमेशा मुझे याद रहेगा। क्योंकि गम के लम्हात में जो बंदे को याद रखता है, गले लगाता है ना, वो बोलता है। मैंने हुजूर के बारगाह में जाकर सलाम किया। चेहरा अनवर खिल रहा था और खुशी के आसार जाहिर थे। हुजूर का चेहरा मुबारक खुशी के वक्त चांद की तरह चमकने लगता था। मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मेरी तौबा की तकमील ये है कि मेरी जायदाद जो है वो अल्लाह के रास्ते में सदका है। हुजूर ने फरमाया, इसमें तंगी होगी, कुछ अपने पास रहने दो। मैंने अर्ज़ किया, ठीक है, खैबर का हिस्सा मेरे पास रहेगा, बाकी जो है वो सारा मैं अल्लाह के नाम पर सदका करता हूँ। मुझे सच ही ने निजात दी, इसलिए अहद कर लिया कि हमेशा उसके बाद सच ही बोलूंगा और हमेशा फिर सच ही बोलते रहे। बहरहाल साहबे किराम के ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें हमारे लिए बहुत बड़े असबाब और बहुत बड़े सबक है। कुरान करीम ने बहुत खूबसूरत अंदाज से इन हजरात के तौबे को बयान किया। वअलस सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। जब देखा जमीन तंग हो गई, अपने आप से तंग आ गए, कोई बोल के राजी नहीं है, कोई देख के राजी नहीं है, कोई सलाम लेके राजी नहीं है, तो सारी की सारी तवज्जो फिर अल्लाह की तरफ की, अपने उस गलती की माफी मांगी और अल्लाह ने फिर उनके तौबा को ऐसे कबूल किया कि कुरान में क़यामत के सुबह तक के लिए उनके तौबे को अल्लाह ने महफूज कर दिया। ये थे मुखलिस लोग, अल्लाह से लव लगाने वाले, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले। अगर ना हमें कोई कह दे कि तुम ये न करना, तुम ये न करना, मैं कहता ठीक है, जाओ तुम अपना करो, मैं अपना कर। हम कौन सा इतना साथ चलने वाले लोग हैं किसी, फिर दीन का मसला आ जाए, यार कर लेंगे, बाद में देखा जाए। सहाबा किराम के सामने पहले दीन, पहले हुजूर का फरमान, पहले हुजूर की रजा, पहले अल्लाह की रजा, उसके बाद बाकी दूसरे का। तो हम भी कोशिश करें। हमारी जिंदगी में कितनी कोताहियां, कितनी गलतियां हैं, हम भी अल्लाह से अपने गलतियों के, अपने कोताहियों के, अपने गुनाहों की माफी मांगे। जब माफी मांगेंगे तो वही रब है जो तौबा को कबूल करता है और अपने बंदे को माफ करता है। दिन भी माफी के चल